So now the stage is set for the seminar Importance, Preparation and Protocols by श्री उत्तम पेडनेकर जी। और उसके बाद हमारा युवा शक्ति सेमिनार होगा। तो बैठे रहिए, कुछ समय ही है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। पूजा, प्रिपरेशन एंड प्रोटोकॉल्स, पूजा का महत्व, पूजा की तैयारी और पूजा की मर्यादाएं या प्रोटोकॉल्स। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पूजा जो शब्द है, ये एक संस्कृत वर्ड है, शब्द है, और उसमें श्रद्धा, भक्ति, इसका वर्णन या इसके द्वारा इसका प्रकटीकरण होता है। और इसका जो महत्व है, एज पर वेदास, पूजा इज इसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन एंड मेंटेनिंग हार्मनी इन द यूनिवर्स। सब सहजियों को पता है कि पूजा का सहयोग में क्या महत्व है, हम जानते हैं, और इसमें हम सीरियस भी हैं कि पूजा किस तरह से कंडक्ट करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स पे हम थोड़ा सा जानेंगे श्री माता जी के वीडियो द्वारा। इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने, आदिशक्ति ने किया। इस सृष्टि में जो भी मैटर्स है, जो जड़ वस्तुएं हैं, वो सारी, और पंचमहाभूत तत्व भी सारे परमात्मा ने बनाए हैं। सो हम जब पूजा करते हैं, श्री माता जी की पूजा करते हैं, तो हम कुछ ऑफर करते हैं। जैसे पंचमहाभूतों में से जल है, अग्नि तत्व है। सो ये जो हम ऑफर करते हैं, उसका क्या महत्व है, ये हम क्यों ऑफर करते हैं? ये सारी चीज़ें परमात्मा ने ही तो बनाई है, उनकी ही है, तो हम ये सारी चीज़ें उनको क्यों ऑफर करते हैं? तो इसके बारे में हम जानेंगे। ट्वेंटी सितंबर 1980 का ये श्री माता जी का स्पीच है। उसका टाइटल है लिथार्जी मोस्ट एंटी गॉड लंदन। तो इसमें श्री माता जी पूजा के बारे में और ये ऑफरिंग्स के बारे में बताती है। स्पीच इंग्लिश में है, पूरे ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। उसके पश्चात उसको मैं हिंदी में समराइज करूँगा। When we want to have a matter to ourselves, we must know that it is given to us by God. Everything belongs to God. Supposing we give flower to God, after all it is God's own creation. What are we giving? We show light to God or do arti to God. What? It is all God's light only. What do we do? But by showing light to God, what we do is to be worship light within us. The light element gets enlightened within us. The light element is here on the Agya.
when you do arti, or when you put light before God, when you show light to God, the light element within you gets enlightened. When you give flowers, Muladhara gets enlightened. When you get honey, then your attention gets enlightened. So why we give it to God? After all, God doesn't need anything. But God is the enjoyer. You are not the enjoyer. You cannot enjoy. Enjoyer is God. In you, when God is there, that enjoys, that is the spirit. So whatever pleases your spirit is used in the puja to be given. Now you give rice. All these things are discovered. That you give rice to the Devi. Rice should be put in her lap. Now what is rice? A little rice to a Devi. Is by putting rice in you the satisfaction of getting food, or food that gives you satisfaction is enlightened. But that doesn't mean you start showering things on me. That doesn't mean that. What I'm trying to say, do it with dignity and understanding. That you give me rice. Now, rice giving is people don't understand why rice is to be given to God. After all, why give him palm leaves? What is he going to do? If he Christ was the Son of God, what was the use of putting palm leaves for him? Or to give him oil bath, or to rub his feet with oil. It is for you to get the advantage. Now in Sahaja Yoga it is proved now. When you rub my feet, you feel better, not me. You rub my hands, you feel better. When you fall at my feet, you feel better. She is a great, what were you doing? Huh? Reflexology. Big name, huh? Reflexology. And she's supposed to know about the feet and things like that. One day she said, Mother, I want to come and massage your feet. I know this and all that. So I said, all right, come along. So she came to rub my feet. Instead of I becoming relaxed, she was becoming relaxed. The more she was rubbing, she was getting relaxed. So, you see, when you do for God, the blessings comes to you. You are blessed. Whatever is a problem with you, you give to God to solve. Also, whatever satisfies you, you give to God. The satisfaction comes to you. Now these flowers, when you give it to me, Muladhara, they give you two things, Swadhisthana and Muladhara. Flowers, that's why very important. They give Swadhisthana. If the flowers are beautiful, then they give Swadhisthana. And if they are fragrant, they cure your Muladhara. Now, I mean, there's no end to flowers also. But think about it, that you are doing it to improve your chakras. Then other things that are used, like say ghee. Ghee is used. It is for Sri Krishna is very fond of ghee and butter. So when you rub my feet with say butter, your Vishuddhi will improve. You know that. Not mine. I have no problem. I have only one problem, that you are within me, and when you have problem, I have problems. Because these vibrations have to go to you. So I prepare vibrations here as an antidote, and they have to flow. It's a very subtle thing to understand. To move from gross to spirit, this is the thing by which you move. Because first you enlighten your chakras. By enlightening your chakras, your deities get happy, prasanna. By making the deities happy, you get a passage for the Kundalini to pass through. By making the passage for the Kundalini goes up. And then your attention starts becoming one with the spirit. It is step by step. You move from matter to subtler matter,
from subtler matter to your chakras, from chakras to deities, from deities to the spirit. Then spirit enjoys itself. So there you do not have to do anything. Just give your spirit to spirit. That's why these things were prescribed. Now people could not see this linkage. They thought that why should we give anything to God? After all, it is all His own. The argument started. Why should we put lights? There is no need. But this is an escape. Where are you? At what stage? Keep it there. You are at a stage where you have to detach yourself from matter. इस वीडियो में श्री माता जी ने बताया, शॉर्ट में समराइज करते हैं, मटेरियल ग्रॉसनेस, जो स्थूल मटेरियल्स का यानी कि जड़ वस्तुओं का जो ग्रॉसनेस है वो कम करना है. दैट इज़ द इसेंस ऑफ पूजा. इसमें बताया कि जब हम श्री माता जी के सामने दिया लगाते हैं, आरती करते हैं, जब अग्नि तत्व हम दिखाते हैं तो हमारे अंदर का लाइट एलिमेंट जो है वो जागृत होता है. जो हम फूल अर्पण करते हैं श्री माता जी को, अगर वो कलरफुल रंगीन फूल है तो उससे हमारा स्वादिष्टान चक्र क्लियर होता है. अगर सुगंधी फूल है, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स है, तो उससे मूलाधार चक्र क्लीन होता है. हनी, जो शहद हम जो ऑफ़र करते हैं, उससे हमारा अटेंशन, चित्त जो है वो क्लियर होता है. घी जो हम ऑफ़र करते हैं उससे हमारा विशुद्धि चक्र क्लियर होता है. जो चावल हम श्री माता जी को ऑफ़र करते हैं उससे जो समाधान, सेटिस्फैक्शन का जो इमोशन है या जो समाधान हम में है वो जागृत होता है. ओटी में हम लोग जो राइस, चावल जो ऑफ़र करते हैं तो श्री माता जी कहती हैं कि आप 5 बार मुझे देते हो तो मैं आपको 7 बार, उसका 7 गुना आपको देती हूँ. जब कोई सहयोगी श्री माता जी के चरण रब करते हैं, मसाज करते हैं, तो उस सहयोगी को रिलैक्सेशन मिलता है. और श्री माता जी ने आगे बात की टू मूव ग्रॉस टू स्पिरिट, कि पहले चक्रास हमारे क्लियर होते हैं और चक्रास पे जो देवता है वो प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न होकर अपने उनके गुणों के और आशीर्वाद के वाइब्रेशंस हमें वो छोड़ते हैं, जो हम आशीर्वाद स्वरूप में, चैतन्य रूपी आशीर्वाद स्वरूप में हम लेते हैं. और फिर कुंडलिनी के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है. इसमें एक लिंकेज बताया श्री माता जी ने कि मैटर यानी जड़ वस्तु, वहाँ से फिर सूक्ष्म वस्तु और चक्रास और उसके ऊपर अधिष्ठित देवता और उनके द्वारा स्पिरिट तक हम पहुँचते हैं. सो ये जो चक्रास पे जो देवता के स्थान है, तो वो जो आसन है उनको आसन हमें अच्छा आसन देना चाहिए. इसके लिए जो हम ऑफ़र करते हैं वो उतना ही ऑस्पिशियस होना चाहिए ताकि उस चक्रों पर स्थित देवता प्रसन्न हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशंस दें. सो ये जो ऑफरिंग्स है हमारे, वो दैट इज़ टू इम्प्रूव आवर चक्रास. आगे एक छोटा सा स्पीच देखते हैं श्री माता जी का. टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ पूजा, स्पेन, 24/5/1986 का है. Moreover, while doing the puja, supposing you are a doubting type or you are opposing it,
then you don't absorb the vibrations, and I have problems. Because the vibrations are flowing and you are not receiving it. So I don't know how to contain within myself. You don't suck in the vibrations. So I take time to take them out. So all these things are very symbolic. Whatever we are doing is very symbolic. And that symbol actually acts. For example, if you give somebody a flower, that person feels extremely joyous and happy, and gratitude comes in. So when you offer me, say, flowers or anything like water or anything, then the elements are happy and the deities are happy in the chakras. And then they emit their vibrations of their quality and of their blessings on you. They give you their quality and their blessings. That is how the divine acts. And gradually, after puja, you will feel it, that the whole thing is working out. Now, we are doing puja at this time, and all over the world people know that there's a puja going on here. So they are also sitting in meditation, and they also get the blessings. They are also waiting for this moment when the puja starts. So we give them a time like 11 o'clock or so. Up to 11 o'clock we should sit down, and they start at 11 o'clock. Now they are getting the same blessings. So you are doing the puja, but they also get the blessings in their meditation. If you are not yet so clever, and if you don't know all the few things which are important in the puja, does not matter. Because if you are ignorant about it, innocent about it, God knows, He forgives. He doesn't mind. You should not mind if you commit any mistakes or anything. Just with a humble heart, do the way you like. Gradually, you will learn. But if you know and then you deliberately make mistakes, then it's not good. As we forgive our children, God also forgives innocent children. Yes. So you should be very relaxed about it. And just do it for the joy of your heart. May God bless you all. Que Dios os bendiga. अगर हमारे मन में, विचारों में कोई संदेह है, यानी कि इफ़ वी आर डाउटिंग टाइप, तो हम वाइब्रेशन एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं. पूजा में इनोसेंटली अगर हमसे कुछ भूल होती है तो परमात्मा श्री माता जी हमें ज़रूर क्षमा कर देते हैं. लेकिन श्री माता जी ने ये वार्निंग दी है कि अगर आपको पता है फिर भी आप डेलिबरेटली कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड. तो यह हमें ख्याल रखना चाहिए कि पूजा में जो प्रोटोकॉल्स है या जो बताई गई चीज़ें हैं श्री माता जी ने, वो हमें केयरफुली फॉलो करनी है. 18 जून 1983 फ्रांस के एक स्पीच में श्री माता जी ने कहा है कि when we do puja, the forms melt into formless energy and flows through vibrations. तो जो पूजा के जो वाइब्रेशंस पूजा में हमें आते हैं, तो ये फॉर्मलेस जो फॉर्म्स है, यानी जो चक्रास पे जो देवता है, वो फॉर्मलेस स्टेट में हमें वाइब्रेशंस देते हैं. पूजा जो है वो रैशनलाइज नहीं की जा सकती, यानी कि तर्क संगत नहीं हो सकती. ये विचारों से परे है. पूजा में हमें मैक्सिमम एडवांटेज हमारे चक्रों पर मिलना चाहिए. उस अनुसार, उस हिसाब से हमें पूजा करनी चाहिए. पूजा में हम विटनेस स्टेट में होना ज़रूरी है. जस्ट सी एंड एब्सॉर्ब ऑटोमेटिकली एंड स्पॉन्टेनियसली, कीपिंग हार्ट ओपन. खुले हृदय से, ओपन हार्ट से ये हमें पूजा के वाइब्रेशंस एब्सॉर्ब करने होते हैं, विदाउट एनी थॉट और विदाउट एनी रिएक्शन.
27 दिसंबर 1985 ब्रह्मपुरी और 30 मार्च 1983 मुंबई। इस अमृतवाणी में बताया गया है कि पूजा का जो असर है, इफ़ेक्ट है, वो सब पर होता है, बट अकॉर्डिंग टू आवर डेप्थ, श्रद्धा, फेथ। तो हमारी जो स्थिति है, हम कितने रिसेप्टिव है, हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना क्लियर है, श्री माता जी के आशीर्वाद, वाइब्रेशंस पाने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना सक्षम है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। अगर हमारा मन फिर भी सोचते ही रहता है तो हम कुछ खास पूजा में अचीव नहीं कर पाएंगे। ये नॉलेज ऑफ रूट्स है हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए, और इसी के लिए हम पूजा करते हैं। पूजा इज एन एब्स्ट्रैक्ट अचीवमेंट which can only be experienced with a feeling to achieve egolessness, emptiness and cleansing। ये एक खास अचीवमेंट है पूजा, जो श्री माता जी ने सिर्फ सहज योगियों को ही दिया है। 5 में लंदन 1980, यहाँ पर भी श्री माता जी ने एक चेतावनी दी है कि फॉर पूजा वी शुड नॉट गेट पीपल हु आर ऑफ मीडियोकर नेचर बिकॉज टू बेयर पूजा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो औसत दर्जे के सहयोगी या जो पूजा के लिए, पूजा के वाइब्रेशंस रिसीव करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे सहयोगियों को पूजा में नहीं लाना चाहिए, ऐसा एक क्लियर कट संदेश है। चरणामृत जो है, पूजा में जो चरणामृत होता है, श्री माता जी के चरणों से वाइब्रेटेड जो चरणामृत होता है, that means the ambrose of Shri Mataji Charan is not meant for everyone. So try to avoid people who are not yet fully equipped. तो हमें खुद को ये इक्विप्ड होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि ये जो चरणामृत है वो हम प्राशन कर सकें। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी इन पूजा। ये एक विशेष अधिकार है, प्रिविलेज दिया है श्री माता जी ने, जो श्री माता जी की पूजा हम कर सकते हैं। नॉट टू प्ले गेम्स इन सहयोगा। कोई चालाकी, कोई ट्रिक्स, ये बिल्कुल वर्ज है श्री माता जी के पूजा में या इवन सहयोग में भी। नो ट्रिक्स, नो प्लेइंग गेम्स। सिंसियरिटी इज द की ऑफ सक्सेस। आप कितने सिंसियर हो एज ए सहज इंस्ट्रूमेंट, एज ए सहयोगी, हम कितने सिंसियर हैं, उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि पूजा का जो लाभ है वो उसके अनुसार हमें मिलता है। सो टेक इट एज ए प्रिविलेज। इट्स अ VIP ट्रीटमेंट फॉर यू। यू आर ऑल VIPs। समझ लीजिए कि श्री माता जी आदिशक्ति हमें VIP बोल रही है। ये स्पेशल VIP ट्रीटमेंट है जो श्री माता जी की पूजा हम कर सकते हैं। तो ये कित हद तक इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो डेप्थ है वो हमें समझना ज़रूरी है। और पूजा के बाद ध्यान ज़रूर करना चाहिए। अगला एक स्पीच है 19 जुलाई 1980 ब्राइटन। उसमें श्री माता जी कहती है कि विदाउट रियलाइजेशन पूजा हैज़ नो मीनिंग। क्योंकि हम अगर रियलाइजेशन नहीं है तो हम अनन्य नहीं होते हैं, हम जुड़ नहीं सकते। इसके लिए पूजा का कोई मीनिंग नहीं है अगर हमारा सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है। श्री माता जी में सारे प्राइमोडियल डेटीज़ स्थित है, इसके लिए हम श्री माता जी की पूजा करते हैं। फर्स्ट, वाइब्रेशंस इम्प्रूव होने चाहिए, यानी कि हमारी रिसीविंग कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव होना ज़रूरी है। जब हम श्री माता जी के चरण धोते हैं, क्लीन करते हैं, तो हम रिकग्नाइज करते हैं कि श्री माता जी ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है, और उसका जो ग्रैटिट्यूड है, उसकी कृतज्ञता है, वो हम प्रदर्शित करते हैं। और वो कृतज्ञता प्रदर्शन के बाद श्री माता जी का जो हृदय है वो हमें चैतन्य रूपी आशीर्वाद देता है। सो जितने हम रैशनल है, मेंटल है, तो हम पूजा का आनंद ज़्यादा नहीं पा सकते। तो कुछ ये श्री माता जी के स्पीचेस में से पूजा के बारे में जो बताया श्री माता जी ने, इसका ये अंश था।
श्री माता जी के बहुत सारे स्पीचेस हैं, लेकिन थोड़े से ही सिलेक्ट किए हैं। तो श्री माता जी की जो साक्षात पूजा होती थी उसके अनुसार अब अपनी जो पूजा होती है अलग अलग एरियाज़ में, इंडिया, एब्रॉड, सब जगह, तो इसका जो फॉर्मेट है वो शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रथम स्वागत आरती बाय 2 योगिनीज होती है। फिर श्री माता जी को पुष्पहार अर्पण किया जाता है बाय 2 योगीज। श्री गणेश पूजा होती है बच्चों के द्वारा। फिर देवी पूजा होती है, श्रृंगार होता है 2 योगिनीज के द्वारा। फिर 7 मैरिड लेडीज ओटी करती है। फिर स्वरूप पूजन होता है, जिस देवता के स्वरूप में श्री माता जी की हम पूजा करते हैं उनका स्वरूप पूजन होता है। और फिर श्री माता जी की आरती होती है। तो ये एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में हम पूजा करते हैं। पूजा प्रोटोकॉल्स थोड़े से स्थूल स्वरूप पूजा प्रोटोकॉल्स ज़्यादा लिए नहीं हैं, थोड़े से सूक्ष्म लेवल पे हम सोचने की कोशिश करते हैं। सो सेल्फ क्लियरिंग इज़ मस्ट फॉर पूजा। अगर हम पूजा में जा रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि वी शुड क्लीन आवर सेल्फ फ्रॉम इन एंड आउट। तो हमारी रिसीविंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम पूजा में जाने के लिए सक्षम हो। पूजा वेन्यू एंड सराउंडिंग्स शुड बी क्लीन, ये तो सभी को पता है। पूजा जो हम करते हैं दैट शुड बी परफॉर्म्ड विथ कंप्लीट सरेंडर हार्ट्स, डिवोशन, श्रद्धा, ग्रेटिट्यूड एंड थॉटलेस अवेयरनेस। ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे समर्पण से, पूरी श्रद्धा से ये हम पूजा होनी चाहिए। ये जो आज का टॉपिक है आज जानबूझ के रखा है क्योंकि शाम को हमारी श्री क्रिसमस पूजा है, तो उसकी तैयारी हमें अंदर बाहर से करनी ज़रूरी है। सो श्री माता जी कहते हैं कि पूजा के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो उसके अनुसार हम खुद को तैयार करें। सो विदाउट रिलेशन पूजा हैज़ नो मीनिंग। सिंसियर एंड ऑनेस्ट टू सेल्फ। कुमकुम हमें ज़रूर लगाना चाहिए पूजा के दौरान आज्ञा पर। और हमारे जो पोशाक है, हमारे जो अटायर है, वो पूजा के अनुरूप चाहिए। हम हिंदुस्तानी जो कपड़े हैं सभी को पता है, ये स्थूल स्वरूप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी इसमें इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। तो हम प्रॉपर अटायर में पूजा अटेंड करना चाहिए। जो भी ऑफरिंग्स है जो हम श्री माता जी को समर्पण करते हैं दैट शुड बी क्लीन एंड ऑस्पिशियस। जो फूल हम अर्पण करते हैं या चावल है या बाकी जो भी पूजा सामग्री है वो ऐसी हो कि अच्छी क्वालिटी की हो, श्री माता जी को समर्पित करने जैसी शुद्ध और ऑस्पिशियस हो। जब हम पूजा में मंत्र लेते हैं तो पूरी श्रद्धा से ये मंत्र लेने चाहिए। पूजा में आते वक्त या जो सभी सहयोगी भी और जो प्रतिनिधि रहेंगे वो भी अपने हाथ स्वच्छ रखें और उसी के साथ साथ हमारे हृदय भी स्वच्छ होने चाहिए। पूजा में जो भी यूटेंसिल्स, जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। एज फार एज पॉसिबल सिल्वर यूटेंसिल्स हो। अगर किसी को पॉसिबल नहीं है तो कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रास या कॉपर, लेकिन जनरली हम सिल्वर यूटेंसिल्स यूज करते हैं और वही श्री माता जी ने बताया है। नो प्लास्टिक यूटेंसिल्स, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें पूजा में इस्तेमाल नहीं करनी है। जो 5 एलिमेंट्स है जैसे कि फ्लावर्स होते हैं, कोकोनट, कॉन्च, दिया, ये जो बताया गया उसके स्वरूप
ये इस्तेमाल होना चाहिए। और मेडिटेशन आफ्टर पूजा वो भी ज़रूरी है। और एक छोटा सा वीडियो देखते हैं श्री गणेश पूजा सांता क्रूज यूएसए 1983 का पूजा प्रिपरेशंस के बारे में है। When you are all meditative, and inside I also find it difficult to be outside. So today you have arranged to have this puja here. Just before that, you have to prepare yourself physically and mentally. Physically, you must give yourself a bandhan. And a bandhan is just nothing but that you give yourself a protection to your aura. And how you do it is very simple, which I will tell you just now how to do it. And then you sit down for your puja. Then mentally, you have to put yourself right. First of all, you should not feel guilty at all. If you are guilty, you cannot do my puja. So you should be absolutely above that. There should be no tension in your mind. You are not guilty, you are in the present. See, like flowers, you are looking. How can flowers be guilty? First, get out of that guilt business. You should not feel guilty or tensed up. Everything that is done is the best. You shouldn't worry about it. It's not your responsibility even to arrange it. Just think that everything is done sahaja. Gradually, when you will move in Sahaja Yoga, you'll be surprised to see how things are arranged just beautifully. When these people just were finding out a place, this had no place which was for less than $250 each. They said it is rather too much for everybody's pocket. And then suddenly, spontaneously, they found this place. When they said $50, nobody could believe. They thought that we'll just get some porridge in the morning and the rest of it will be fasting. And so many were rather worried. Some thought it was a scout camping ground or whatever it is, and quite worried when it started raining. But see, this is all God's grace to get such a place, such a comfortable place for you to come here. Everything is arranged by God's grace. So first we have to remember that it is all arranged through God's grace. If something is not arranged, just forget it. Just leave it. Just don't worry. That's the best way you have to live. Then what happens? That you become one with the present and you can overcome all your problems of tension. Tension mounts up when we want to do which we are not supposed to do, which we are not successful with. It's also a mental barrier between ourselves and our mind that we want to do a particular thing in a particular way. If you can give up that, then you will be surprised that you become absolutely one with the divine and you start working it out in a very beautiful manner. Now see the root of a little seed. It just sprouts, it goes this way. If it finds there is an obstruction or there is some sort of a stone or something, it goes around it. Then it finds something other obstruction, it goes away from it. It doesn't fight that, just says, all right, let me find my own way. And then he uses the same stone for holding the tree. So clever. He goes round the little stone and uses that for its own purpose. So this is how a Sahaja should behave, not to take responsibilities and put others into tensions. This must be done, this is not here, that is not there. It's not necessary. It's your love that is important. उसी स्पीच का और एक पार्ट देखते हैं। There are some people
who still have lots of doubts. I know that, who are sitting here who have doubts. These should go away. Because then they feel guilty, I had doubts. So please get rid of those doubts if possible, because I do not want that you should feel later on that, oh mother, we doubted you. So just now better get rid of the doubts. One thing one should understand, that Mataji has nothing to gain for us, we cannot give her anything. We cannot give her anything, only we have to take from. If you understand that, then you will have no doubts, because that is one of the fears people have, that I am going to snatch away something from you. So once you understand that she has nothing to take away from us, she has to give us something. Supposing I say there's a diamond available here, free for you. Will you doubt me? You'll say, all right, let's see if it's a diamond or not. First snatch it. That's how your attitude should be. So those who have doubts should know that with the doubts they'll go very slow and they may be thrown out. So please do not have any doubts. The doubting mind is the most troublesome thing. It will never allow you to enjoy your spirit. So there is no need to doubt about it. It's open. Everything is so open. There's no secret about it. You understand that and try to imbibe the quality of a good Sahajogi, of a Sahajogi who is steady. By doubting, your steadiness will go away. And if a tree is not steady, how will it embed itself? So it is important that you should give up all doubts. And you are so quickly into it. Seldom we do such a thing. It's too much of a thing. We've never done like that before. It's an experiment. We want to see now how it works out. It's really an experiment. We have never done like this before. It's a very dangerous thing. I have seen it that people who get into puja, then they might get little stomach pain or something will happen to you by which you will be cleared out. Little bit. Not much. But then you will feel much better out of that. So it is a thing that has to happen. It's just like an operation which takes place. So first we used to do is to cleansing of the people, of their chakras, this, that. When they are cleansed and reached a certain position, then only they were allowed to do my puja. But I found that when I came first to America, I did not talk about puja. I talk about the abstract thing. I didn't want to say about these things. We did not do any puja. We did not establish Sri Ganesh here, nothing of the kind. And as a result of that, people who came to me got lost. I didn't tell them how to keep their health all right or about anything. It was such a short time, and the whole thing was a bad response from people that I thought it's better to leave it now. But now time has come for all of you to have it in a big way, because you are all seekers and we cannot delay it anymore. So come to me without any doubts. If you have doubts, it's better that you go away. It will be a better idea for me and for you also. When your doubts are removed, then you come for the puja. So don't sit here with your doubts. Otherwise, I will have a headache. Apart from that, you will have your headache. So sit in a very cheerful mood, in a receptive mood, and see for yourself what happens to you. May God bless you. Did you tell them what we are going to do? Or should I? First, we are going to do Sri Ganesha's puja. Now, Sri Ganesha's puja is done by washing my feet. Everybody is not going to wash. I wish everybody could do, because with that your hands open out very much better. Everybody who came in San Francisco washed my feet, felt it very well. But we have to have some selection of people who we think are all right. They are going to do the washing. But the rest of them, I've told them, this water which is vibrated, you should put it on your head to baptize yourself. But nobody should touch that water. When that water is washed out, when you have taken the thing, just with a spoon you can put it on the head, and then with your hand you can rub it. But I think best thing would be to put it on the head a little bit, and then on your hand, or first in the hand, clean it, and then when you put it on the head, you can rub it. Because your hands will show all the vibrations being ruined or spoiled, or if there is any defect. So best is first to wash your hands and then put it on the head so that it is cleaned up. This we are taking as a precaution, because it's a very fast thing we are doing. So we are taking a precaution. Because it's a very fast movement. And we have to be fast now.
So we have started this thing. We may lose some of you, I know that, but doesn't matter. Some can be lost, but many can be brought up. So it's a big operation, which I hope carefully done may work out wonders. So be careful. Now don't start thinking that I may be one of them who will be lost. There are people who are thinking that. It should not, whatever I say, it should not also create a doubt in your mind about yourself. That's the main point. If you have doubts about yourself, you will have problems. You see, so don't have doubts about yourself also. That's very important. Because if you have doubts about yourself, then nothing can be worked out. इस स्पीच में श्री माता जी ने यह बताया कि हमें फिजिकल एंड मेंटली, शारीरिक और मानसिक दृष्टया हमें तैयार रहना है पूजा के लिए। तो फिजिकली हमें बंधन लेना है, और जो मेंटली है श्री माता जी ने बताया कि नॉट टू फील गिल्टी। अगर हम गिल्टी फीलिंग में हैं तो हम श्री माता जी की पूजा नहीं कर सकते, और कोई टेंशन्स नहीं चाहिए पूजा के दौरान, क्योंकि श्री माता जी सब कुछ संभाल लेती है। परमात्मा हमें क्षमा करके सारी चीज़ें वर्कआउट होती है। कोई भी चीज़ अगर नहीं भी होती है तो जस्ट फॉरगेट इट, श्री माता जी ऐसे कहती है। कोई भी चीज़ एक अमुक एक तरीके से ही ऐसे ही होनी चाहिए, तो शायद वो होती नहीं है और हम फिर टेंशन में आते हैं। तो उसको छोड़ दीजिए, जैसे डिवाइन करना चाहे वो वर्कआउट कर लेगा। वी कैनॉट गिव एनीथिंग टू श्री माता जी, ओनली वी हैव टू टेक फ्रॉम हर। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम श्री माता जी को कुछ नहीं दे सकते, जो श्री माता जी ने ही सब कुछ हमें दिया है। फिर से डाउट की बात की श्री माता जी ने कि हमें अपने अंदर कोई संदेह, कोई डाउट्स पूजा के दौरान नहीं होने चाहिए, और पूजा के दौरान हम चीयरफुल मूड में, उत्साह में और रिसेप्टिव मोड में होना ज़रूरी है। तो ये सूक्ष्म लेवल के पूजा प्रिपरेशंस है, और जो सहयोगियों ने जो पूजा प्रिपरेशंस करने हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि खुद का इंस्ट्रूमेंट क्लियर करें, रेगुलर सॉल्ट वाटर एंड जो भी आपकी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट्स हैं वो करके आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छी तरह से क्लियर करके रिसेप्टिव बनाएं पूजा के पहले। वाइब्रेटरी अवेयरनेस जो है आपका, दैट शुड बी इम्प्रूव्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा हम वाइब्रेशंस लेने में सक्षम हो, उस दिशा में हमें कार्य करना होगा। कुछ डूज एंड डोंट्स है ड्यूरिंग पूजा। पूजा के दौरान कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें लिस्ट आउट की है। टू रीच पूजा वेन्यू इन टाइम एंड इन प्रॉपर अटायर। पूजा के स्थल पर समय पर या समय के पहले ज़रूर पहुंचना है। डोंट स्ट्रगल टू सिट इन फ्रंट। देर से आने के बाद भी हमें आगे ही जगह चाहिए, ये ठीक नहीं। अगर आपको आगे जगह चाहिए तो आपको जल्दी आना है। जो भी आपको जगह मिलती है आप प्लीज़ वहाँ सेटल होना है। मोबाइल फ़ोन्स स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखना बहुत ज़रूरी है। अनलेस आपको कोई पूजा रिलेटेड या कुछ इमरजेंसी हो तो बात अलग है। जब आवाहनम होता है तब हम श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो भी उस देवता के क्वालिटीज़ हमारे अंदर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो ये जो प्रार्थना है आवाहनम के वक्त वो पूरे हृदय से होनी चाहिए। गणेश पूजा में जनरली वी कॉल फॉर 4 to 12 years बच्चे, युवा भी नहीं, बच्चों को हम बुलाते हैं 4 से 12 साल के गणेश पूजा में।
और देखा ये जाता है कि 5 महीने के 6 महीने के बच्चों को लेके उनकी माएँ आती हैं। सो थोड़ा सा ये एक मर्यादा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 4 से 12 बोला गया है तो 4 से 12 आयु के ही बच्चे आने चाहिए, ताकि वो खुद चलकर जाकर वो श्री माता जी के चरणों पर जल अर्पण कर सकें। अगर 6 महीने के बच्चे को आप लेके जाएंगे, वो बेचारा क्या कर सकता है? तो उसको बड़ा होने दो, 4 साल का होगा, उसके बाद में आपको पूजा के लिए चांस मिल जाएगा। सिट साइलेंट एंड काम ड्यूरिंग पूजा एंड ट्राई टू एब्सॉर्ब मैक्सिमम वाइब्रेशंस। पूरी शांति से एकाग्र चित्त होकर पूजा अटेंड करनी है, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। हम पूजा में 108 नाम लेते हैं उस देवता का, तो कोशिश करिए कि 108 जब नाम है, एक एक नाम हम जब लेते हैं तो वो जो नाम है तो उसके मीनिंग क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मीनिंग ऑफ दैट नेम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं तो सिर्फ मुंह से नाम जा रहे हैं, बाकी उस आपका जो ध्यान है, आपका चित्त कहीं और है, तो वो वर्कआउट नहीं होता है। तो 108 नेम्स के वक्त आप उसके मीनिंग्स पर ज़रूर ध्यान दें। पूजा खुली आंखें रख के अटेंड करनी है और निर्विचार स्थिति में पूजा अटेंड करने की कोशिश करेंगे। डूज एंड डोंट्स आफ्टर पूजा। पूजा होने के बाद जब आरती होती है तो आरती के पश्चात वाइब्रेशंस का फ्लो बहुत गुना बढ़ जाता है। ये तो सबका एक्सपीरियंस है, सबका अनुभव है। फिर भी लोग आरती के बाद महाप्रसाद की लाइन में लग जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आरती के पश्चात वाइब्रेशन का जो फ्लो है, जो चैतन्य, आशीर्वाद रूपी चैतन्य जो श्री माता जी के यहाँ से आता है, उसको ग्रहण करें, उसको एब्सॉर्ब करने की कोशिश करें जितना हो सके। अगर आपको कुछ फील भी नहीं हो रहा है तो भी आप बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको संभव है वो ज़रूर बैठिए, एब्सॉर्ब करने की कोशिश करिए। डोंट रश टू महाप्रसाद। महाप्रसाद तो सबको मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो पूजा के पश्चात मेडिटेशन में बैठना ये कंपलसरी है, कहीं भी भागिए नहीं। जो भी पूजा के पश्चात भजन होते हैं, जो भी होता है, वो जस्ट निर्विचार स्थिति में एंजॉय करें। कुछ फ़ोटो निकालने होते हैं पूजा के, तो वो सब पूजा होने के बाद बीच पूजा में कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं लेंगे। पूजा की जो जिम्मेदारी है, सेंटर कोऑर्डिनेटर की क्या जिम्मेदारी है? जो हमारे यहाँ इतनी पूजाएं होती हैं, तो ये पूजा के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, कौन सी पूजा है, कहाँ है, हम ज़रूर बताते हैं, अनाउंसमेंट भी होता है एवरी सेंटर्स पर। बट पूजा के लिए हमारी सहयोगियों ने क्या तैयारी करनी है, क्या पूजा प्रोटोकॉल्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा बताने का जो माध्यम है वो सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो ये सेंटर कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए आम सहयोगियों तक ये पहुंचना चाहिए कि इस दिन पूजा है, ये समय पर है, टाइम पे पहुंचना और खुद का क्लियरिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है प्रोटोकॉल्स है, वो सेंटर कोऑर्डिनेटर ने उनको बताने चाहिए इन एडवांस। पूजा में प्रतिनिधि सिलेक्ट किए जाते हैं, वो उस एरिया से, जहाँ भी पूजा होती है उस एरिया से प्रतिनिधि सिलेक्ट किए जाते हैं। तो प्रतिनिधि वाइब्रेशंस के तौर पर वाइब्रेशन चेक करके प्रतिनिधि सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये जो प्रतिनिधि का जो मौका है, चांस है, वो अलग अलग एरिया से लोगों को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। तो सेंटर कोऑर्डिनेटर की भी ये जिम्मेदारी है कि आपके सेंटर पर अगर कोई सक्षम सहयोगी है, एक्टिव है, अच्छी स्थिति वाला है, आपको लगता है कि उसे पूजा का मौका मिलना चाहिए, तो ऐसे लोगों का ज़रूर आप नाम सजेस्ट कर सकते हैं। ऊपर जो भी कमेटी होगी, पूजा कमेटी होगी, वो वाइब्रेशन के बेसिस पर पूजा रिप्रेजेंटेटिव, उस प्रतिनिधि का नाम सिलेक्ट करके फाइनल कर सकती है। पूजा रिप्रेजेंटेटिव जो है, पूजा प्रतिनिधि जो है, उनके लिए कुछ गाइडेंस के 2-3 पॉइंट्स हैं।
कि ये जो पूजा प्रतिनिधि जो होते हैं, अभी आप इतने लोग हैं, आज शाम को पूजा होगी तो पूजा में बैठने वाले कुछ लोग ही होंगे, तो वो आपका सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कलेक्टिविटी। सो ये जो पूजा प्रतिनिधि है वो उस सक्षम स्थिति में होने चाहिए कि वो पूरी कलेक्टिविटी का प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये ज़रूरी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं वो अच्छे स्थिति में रहे, अच्छे मेडिटेटिव मोड में रहे, साइलेंट रहे, मेडिटेशन और खुद का जो भी क्लियरिंग है वो उन्होंने करना बहुत ज़रूरी है। और उनमें ये भावना होनी चाहिए कि सारी कलेक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, तो उसके अनुसार सारी चीज़ें उनके द्वारा होनी चाहिए। प्रतिनिधि जो है वो भी प्रॉपर अटायर में चाहिए, अंदर से और बाहर से भी। आप जो भी प्रतिनिधि है स्टेज पे होते हैं तो सबकी नज़र या सबका लक्ष्य वहाँ पर होता है, तो उनका जो भी मूवमेंट्स है, जो भी बिहेवियर है, जो भी उनका अटायर है, सब विजिबल होता है। तो ये केयरफुल रहने की ज़रूरत है प्रतिनिधिस को कि उनका अटायर, उनका मूवमेंट्स अच्छी तरह से हो, सरेंडर्ड स्थिति में हो। और पूजा प्रतिनिधिस को पूजा प्रोसेस जो है वो पूरा प्रोसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी पूजा प्रोसेस कभी होने वाली है, उस पूजा प्रोसेस के दौरान क्या होता है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी उनको होना बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो पूजा के पहले जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो सहयोगी है, आपको सहायता करने वाले हैं, उनसे आप ये डिटेल्स ज़रूर जान लीजिएगा। पूजा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब सहयोगियों के लिए, और पूजा में हम ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशंस सोक करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन ये सिर्फ वाइब्रेशंस ही लेते रहेंगे क्या हम लोग? ये जो हम वाइब्रेशंस ले रहे हैं, हमारे अंदर जो वाइब्रेशंस जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी होना ज़रूरी है। कुछ सहयोगी ऐसे दिखते हैं कि जो सिर्फ पूजा में दिखते हैं, कुछ सहयोगी होते हैं सिर्फ प्रचार प्रसार में दिखते हैं। ये दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पूजा में वाइब्रेशंस लेते हैं तो फिर वो वाइब्रेशंस हमें कहीं देने भी है। तो नए लोगों के लिए ये वाइब्रेशंस का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो पूजा के साथ साथ प्रचार प्रसार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो कंक्लूड करते हुए, आज पूजा का दिन है, तो आज हम सारे सहयोगी पूरे सरेंडर हार्ट से, समर्पित हृदय से और पूरे भक्ति से आज श्री माता जी की पूजा करेंगे और श्री माता जी से आशीर्वाद भी लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू काका, पेडनेकर काका, फॉर सच अ इंसाइटफुल एंड डिटेल्ड सेशन। बहुत सी चीज़ें थी जो हमें इस सेशन से सीखने मिली, और यही फ़ायदा होता है सेशंस और कॉन्फ्रेंसेस का कि उसमें हमारे बहुत से डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, आप बैठे रहिए, हम युवा शक्ति सेमिनार की शुरुआत करने जा रहे हैं।